This call is now being recorded. बात हो चुकी मेरी मैम से बात हो चुकी Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम Good morning, ma'am. मॉर्निंग एवरीवन Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग shall we begin? Yes. Good morning everyone. Myself Anjali Gupta from Department of Environmental Studies, IBPG College Panipat. I welcome you all. We are gathered here today for an online talk on 12th 5-year plan for Janjati areas. During this time of pandemic, our college has organized more than 50 webinars through various departments. Today's webinar is organized by Department of EVS in collaboration with Project Ekalavya Think India Tribal Rights Forum. Efforts done by the team Ekalavya are praiseworthy. With that being said, I offer a warm welcome to the man behind this event, our respected Principal Sir, Dr. Ajay Kumar Garg, honorable management members, worthy staff members, and dear students. I take immense pleasure and honor to introduce our keynote speaker of today's talk, Ms. Sabrina Bath, a member of Think India Tribal Rights Forum and is also a member of Project Ekalavya. Ms. Sabrina is an advocate enrolled with the Bar Council of Punjab and Haryana. With a keen interest in legal research and writing, she is deeply committed towards legal research and activism on access to justice. Think India Tribal Rights Forum is an initiative under Think India, which was initiated in 2006 by the students of Indian Institute of Science and Indian Institute of Management at Bengaluru. Project Ekalavya offers you an incredible opportunity to work and contribute towards uplifting the tribes of India. It is an effort to bring together the best talent and intellectual human resources of the country and to infuse them with a nation first attitude. Tribal Rights Forum is working towards creating a narrative for tribes in the country, creating awareness through various initiatives like internships, book club, live series of posts on various social media platforms, tribal fashion, art, culture, dance, and many more. I once again welcome you, Sabrina ma'am, and invite you for the address. Sabrina ma'am. Good morning, everyone. It's a pleasure. Good morning to all the teachers and all the students present here. As ma'am has already given a brief introduction of me, so it's a pleasure being able to have a discussion with all of you. So I'll be beginning the session. Just a second. Is my screen visible for everyone? Yes, ma'am. It is visible. Yes, ma'am.
So as ma'am has already told that the topic of discussion today is the 12th 5-year plan for the Janjati areas. Janjati areas basically um, uh, is basically the tribal communities होती हैं, ठीक है. तो इससे पहले I begin with my discussion. I have some questions for the audience. So मैं रैंडमली, अगर आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो इट बी इजियर, अदरवाइज मैं रैंडमली किसी का नाम ले लूंगी. तो इट्स बेटर कि अगर आप खुद एक बार पार्टिसिपेट कर ले. सो पहला क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्राइब? आप अगर ट्राइब सुनते हैं तो आपको क्या समझ आता है? कोई है, लाइक एनीवन इज विलिंगली वांटिंग टू आंसर? If no one is answering, then I'll have to pick up the names from the list. Yes. उनके पास घर नहीं होता और वो जंगल वगैरह में रहते हैं. हाँ जी, like something वैसा. दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको, आप लोग अभी ट्राइब्स का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, जैसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कम्युनिटीज इंडिया में, तो आपको कुछ पता है कि उनके क्या क्या इश्यूज, उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? कुछ थोड़ा सा आइडिया है? उनके पास घर नहीं होता, खाने को कुछ नहीं होता है. ठीक है. पानी की कमी. ठीक है. सो अब मैं इससे पहले आई स्टार्ट द सेशन इन डिटेल, मैं आपको आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. सो जो वर्ड है ट्राइब, वो आता है फ्रॉम द टर्म ट्राइबल्स. इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया है. सो ऑन रिसर्चिंग अपॉन द सेम, इंडिया में आप कह सकते हैं कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में, उनको हिंदी में हम उनको जनजाति की जनजाति का वर्ड यूज करके भी डिस्क्राइब करते हैं. और इंडिया में इनको रिकॉग्निशन दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 366 में. ठीक है. सो जो बेसिक चीजें हैं दैट डिफाइन ट्राइब्स आर देयर उनका अपनी भाषा होती है, दे हैव देयर ओन कल्चर एंड दे हैव देयर ओन कस्टम्स जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी इंडियन पॉपुलेशन से. ठीक है. मतलब उनका रहने का एक एरिया होता है, और फिर उनकी मतलब दे हैव, और उनका मोस्ट ऑफ देयर वे ऑफ लिविंग इज कम्युनिटी बेस्ड. ठीक है. उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम्स दैट द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया फेस इज लैंड एलियनेशन. लैंड एलियनेशन मतलब उनकी लाइक फॉरेस्ट लैंड ले लेना. उसके बाद क्योंकि उनकी फॉरेस्ट लैंड उनसे ले ली जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जो मैं आपको आगे आई विल बी डिस्कसिंग, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, फिर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती है. दे डोंट हैव उनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है फॉर एजुकेशन एंड फॉर और बहुत सारे लैंग्वेज लाइक भाषा एंड बहुत सारे और सोशल बैरियर्स. ठीक है. बट अगेन जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे हैव प्लेड अ की रोल इन द पॉलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड however in the modern times, like other vulnerable communities like और minority की communities जो हैं, उनकी तरह tribal communities have also been left far behind from both the social and the economic progress. So following the constitutional mandate and the political compulsions, बहुत सारे legal and administrative measures have been taken so that the welfare of the scheduled tribes and scheduled communities can be taken into consideration. उसके बाद starting with the topic, मैंने आपको बता दिया. So यहाँ पर my main topic is the 12th 5-year plan for the जनजाति areas. So इससे पहले I start with my topic, I will tell you कि 5-year plans होते क्या हैं. So मेरी presentation is visible, right सबको? Yes, ma'am.
ठीक है. So 5-year plans basically government का it was a initiative from the side of the Indian government. ठीक है. And वो उनका मेन एम था टू सेंट्रलाइज एंड इंटीग्रेट द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सो जो हमारा इकोनॉमी है उसका अच्छे से द प्रोग्रेस कैन बी टेकन केयर ऑफ, उसके लिए मेजर्स बताई गई थी 5-year प्लान्स में. एंड ये लॉन्च हुए थे 1951 में. एंड टिल 2017 12 5-year प्लान्स आ चुके हैं. जो 12th 5-year प्लान था वो लास्ट 5-year प्लान था. द रीजन बीइंग क्योंकि उसके बाद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने 2017 में 5-year प्लान्स को बंद करके एक नया इनिशिएटिव शुरू कर दिया था. दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कॉमनली आप जानते होंगे, उसका कॉमन नेम है नीति आयोग. सो how the 5-year plans are कैसे 5-year plan के थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट हुई है. So attempts have been made both to develop the scheduled tribes both socially, educationally and economically and politically also. And उसके लिए बहुत सारी मॉडल अप्रोचेस भी अडॉप्ट की हैं इंडियन गवर्नमेंट ने. उसमें से आ जाता है कि जैसे उनका एग्रीकल्चर में उनको हेल्प करना, क्योंकि एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उनका मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है. रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, मतलब जब उनका सपोज फॉरेस्ट का एरिया सपोज गवर्नमेंट ने ले लिया या फिर कुछ और कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट का एरिया ले लिया गया और वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रह रही थी, तो अब अगर उनका एरिया आपने ले लिया है तो आपको उनको कहाँ पर और कहाँ और सेटल करवाना है, वो सब भी गवर्नमेंट का ही काम होता है. फिर उसके बाद एंड देन उसके बाद उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग देना और बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेन फोकस ट्राइबल चिल्ड्रन और ट्राइबल विमेन पे होता है. सो 12th 5-year प्लान भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव था इंडियन गवर्नमेंट के साइड से, बट उसका मेन गोल ये था कि क्विक, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है. फास्टर, मोर सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को, मतलब नॉर्मली आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो खुद बना देती है. ठीक है, कई बार होता है, हमें नॉर्मल सिटीजन्स को भी होता है कि हमसे हमारी ओपिनियन लेके नहीं बनाई गई. तो इस 12th 5-year प्लान का ये फोकस भी था कि ट्राइबल पॉपुलेशन को मेन फोकस में रख के उनको उनकी जो भी पॉलिसी उनके लिए बनेगी उसमें ये इंश्योर करना है कि उनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो. ठीक है, बट क्योंकि फिर भी 12th 5-year प्लान एक इनिशिएटिव रहा है, बट इसके बाद भी क्योंकि ऑलरेडी ट्राइबल कम्युनिटीज की इतनी सोशल और इकोनॉमिक पीछे हैं वो हमसे, बाकी पॉपुलेशन से, सो इसके वजह से बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये सब इम्प्लीमेंट करना. सो द मेन फोकस थ्रू दिस प्लान वाज कि एक बहुत ही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कंसिडर करते हुए ही उनकी कंडीशंस और उनका क्या अप्रोच है और उनका कहाँ क्या रीच है बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज की, वो सब चीजें कंसिडर करते ही एक हम इनिशिएटिव या अप्रोच करते हैं. उसके बाद सो मेन इश्यूज मैंने वैसे आपको बता दिए हैं कि शेड्यूल ट्राइब की डेवलपमेंट को हम कह रहे हैं कि हमने उनको डेवलप करना है. हमने सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम. ज्योति नंदा, म्यूट योरसेल्फ. ज्योति नंदा, आर यू देयर? ओके, थैंक यू. कंटिन्यू मैम. या सो जैसे मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि ट्राइबल पॉपुलेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, और 12th 5-year प्लान ने बोला है कि हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे. ठीक है, बट कैसे एड्रेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो पहले जो की एरियाज थे 12th 5-year प्लान के वो थे, एक तो एजुकेशन पे फोकस था, दूसरा हेल्थ पे था. मनरेगा जब मैं वो डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी वो क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उनको आइडियाज देने, जैसे अगर कोई ट्राइबल सोसाइटी है वो अपना, जैसे उनका ट्राइबल सोसाइटी का एक अपना आर्ट होता है, अपना कल्चर होता है,
तो उसके थ्रू अगर वो कुछ बिजनेस डेवलपमेंट अपनी तरफ से करना चाहते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव्स थे। अट्रॉसिटीज ऑन एसटीज मतलब उनके ऊपर क्या क्या ज्यादतियां होती हैं उस पर फोकस करना था। जोग्राफिकल एक्सक्लूजन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जोग्राफिकल एक्सक्लूजन बेसिकली ये कि ऑब्वियसली हमें पता है कि जैसे किसी ने ऑलरेडी कहा था, जब मैंने कहा था कि ट्राइब से आपको क्या समझ आता है, तो उनने कहा था कि ट्राइबल पॉपुलेशन इज बेसिकली जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल पॉपुलेशन फॉरेस्ट में तो रहती नहीं है, तो जोग्राफिकल एक्सक्लूजन हो गई कि वो फॉरेस्ट में रहती है। तो फॉरेस्ट में ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको ये सब चीजें नहीं मिलती जो नॉर्मल आपको एक सिटी में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल विमेन और चिल्ड्रन मैंने आपको बताया। उसके बाद इनिशिएटिव्स थे रिसर्च करने के लिए, उनके लिए रिसर्च करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और उनके जब ट्राइबल फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उस पर फोकस करने के लिए। वो सब मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है एजुकेशन पे जब हम आते हैं, एजुकेशन का है despite various development projects and opportunities, the tribal people living in various areas have accrued very little benefits due to lack of adequate and eligible candidates for the jobs created. So हमने बोल दिया कि हमने उनके लिए स्कूल्स बना दिए, उनके लिए कॉलेजेस बना दिए, बट स्कूल कॉलेज बनाना एंड नहीं, इज नॉट द एंड ऑफ द जॉब। आपको ये इंश्योर करना है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं ऑलरेडी उनको पता नहीं है, बहुत सी सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, तो थ्रू एजुकेशन हमने स्कूल कॉलेजेस जब बना दिए, उसके बाद भी हमें ये इंश्योर करना है कि आप जिस भाषा में उनको पढ़ा रहे हैं वो भाषा वो हो जो वो बोलते हैं, ताकि उनको सारी चीजें समझ आए। उसके बाद ये इंश्योर करना है कि स्कूल कॉलेज में जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली वहां पर आके कुछ सीख रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी चीजें निकाली, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग एरियाज। वोकेशनल ट्रेनिंग एरियाज हो गए जैसे आपका निटिंग वगैरह, जो भी उनका ट्राइबल पॉपुलेशन, सपोज कोई एक ट्राइबल आर्ट या क्राफ्ट में है वहां का उनका मेन स्पेशलाइजेशन, तो वो और उनको अच्छे से सिखाया जाए। उसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन है, बच्चों को रहने की, ऐसे हो सकता है कि जहां वो ओरिजिनली रहते हैं दैट इज वेरी फार जहां पर उनका स्कूल या कॉलेज है, तो ये इंश्योर करना बाय मेकिंग हॉस्टल्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ताकि बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, वो स्कूल में ही रह सकें। और आश्रम स्कूल्स वगैरह बनाने, ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो उनका एक लैक ऑफ एजुकेशन है वो हटा सकें और उनको भी एक एजुकेशन ऐसी दे सकें विच इज एट पार विद द एजुकेशन दैट ऑल ऑफ अस रिसीव। देन सबसे मेन चीज है हेल्थ। हेल्थ का वैसे भी अब जैसे आपने देख लिया पैंडेमिक है, आप लोग इवन अगर आप सपोज एग्जांपल ले लो, आप दिल्ली जैसी बड़ी जगह में भी रहते हो, बट आपने देखा है कि कोविड जब हुआ तो दिल्ली जैसी बड़ी जगह में रहते हुए भी लोगों को हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जो लोग ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज के हैं जो ऑलरेडी इतने दूर जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर वैसे ही रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। सो थ्रू द हेल्थ इनिशिएटिव ये इंश्योर करना था कि ट्राइबल अफेयर्स की एक मिनिस्ट्री है अलग से जो ये सब ओवरलुक करती है। तो उनने बहुत सारे एनजीओ जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सब से ये इंश्योर करवाया गया है कि यहाँ पर जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास हॉस्पिटल्स बने हो और मोबाइल डिस्पेंसरीज, मतलब जैसे एक कार, सपोज आप एक ट्रक ले लो, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह घूमती रहे ताकि वो इजी एक्सेस हो सके, ठीक है। सो ये सब का मेन एम यही है कि मेडिकल केयर इजीली उनको एक्सेस हो सके, मतलब जब उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनका मेडिकली उनको केयर मिल सके। उसके बाद काफी चीजें होती है, एक चीज आपने सुनी होगी आयुर्वेद, ट्रेडिशनल मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा हम इंडिया का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन ही है। आई एम श्योर आप सबको आयुर्वेदा का तो आइडिया होगा, बट ऐसी चीजें, सो ये सब चीजें आई कहाँ से हैं, अगर आप पढ़ो इसके बारे में तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटीज के थ्रू ही डेवलप हुई है।
सो इसका एक और इनिशिएटिव ये भी था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो अपने वहां पर वो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, जैसे वहां पर जो लोकली अवेलेबल पत्ते या फिर ऐसी चीजें होती हैं उनसे जो वो मेडिसिन बनाते हैं, वो आप अपनी मॉडर्न मेडिसिन के साथ उसको मिक्स कर सको और एक अच्छा सिस्टम, मतलब उससे उनकी ट्राइबल मेडिसिन को भी वो मतलब एडवांटेज मिलता है। उसके बाद अनदर प्रॉब्लम दैट इज माल न्यूट्रिशन, खाने की अवेलेबिलिटी ना होने से माल न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें केटर करने के लिए, फिर उसके बाद जहां वो रहते हैं वहां इंश्योर करना कि वहां पर सेफ पीने का पानी है और सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं अच्छे से। और उसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लाइक जो एक एज होता है, एक एज तक बच्चों को ये इंजेक्शंस लगे होने चाहिए, ये सब चीजें इंश्योर करना। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ट्राइबल यंगस्टर्स शुड बी डेवलप्ड। कैसे डेवलप करनी है? और जो लोग रहते हैं ट्राइबल सोसाइटीज के, जो ट्राइबल सोसाइटीज के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बिजनेस स्किल्स वगैरह क्या है। तो उनको एजुकेट करना बिजनेस स्किल्स वगैरह के बारे में, और उनको बताना कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस क्या होते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेसेस हो गए जैसे उनका हर ट्राइब का एक अपना आर्ट और कल्चर होता है, सो वो अपनी आर्ट के थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो उनको ऐसी सोर्सेज देना कि वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को एक स्मॉल स्केल बिजनेस से एक लार्ज स्केल बिजनेस बना सकें, ताकि उससे वो भी पैसे कमा पाएंगे। सो बेसिकली उनको क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट एंड उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के लिए भी, अभी स्मॉल स्केल बिजनेस कैसे, अगर आपको घर पे, आपने अपने घर पे बोला कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस ऐसे थोड़ा शुरू हो जाता है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली इन लोगों के पास पैसा नहीं है, तभी तो इनको पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन ये सब चीजों की, एजुकेशन लैक की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, उसके लिए 12 ईयर का प्लान का ये था कि गवर्नमेंट फंड्स देगी इनको, जिससे कि ये अपना स्मॉल स्केल बिजनेस वगैरह डेवलप कर सके। उसके बाद जैसे सपोज मैंने कहा कि एक ट्राइब है, जैसे ट्राइब्स हैं बहुत सारी झारखंड में, सपोज उनका एक अपना आर्ट का फॉर्म होता है, तो उनको पैसा दिया कि आप इस आर्ट फॉर्म को एक स्मॉल स्केल बिजनेस में कन्वर्ट करो। उसके बाद फिर हम इसका इंश्योर करेंगे कि जो आपने आर्ट हैंडीक्राफ्ट डेवलप किया है वो एक्सपोर्ट हो। सो इस सब से उनको पैसा मिले, ठीक है। फिर एक और स्कीम निकली थी, दैट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो इस स्कीम का मेन फोकस ये था टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग। डिस्ट्रेस माइग्रेशन यही हो गया, अब कल को अगर आप जहां पर रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका जहां घर है, वो घर गवर्नमेंट किसी ने आके बोला कि ये घर पे अब आपका हक नहीं है, आपको यहाँ से ये घर को छोड़ना पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। सो ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ भी ऐसा होता है। बेसिकली वो रहते, मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज अराउंड द फॉरेस्ट रहते हैं। तो अब आपको पता है आजकल तो फॉरेस्ट में वैसे भी गवर्नमेंट तो रहने दो, बहुत सारे प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होकर उनको अपने बिजनेस के लिए वो जगह चाहिए, वो लैंड चाहिए, तो फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं। तो जब फॉरेस्ट क्लियर होता है तो ये लोगों का जो बेसिकली जहां इनकी रहने की जगह है वो इनसे छीन ली जाती है। तो ये इंश्योर करना कि जगह अगर छीन ली गई है तो इनको नई जगह देनी, रिहैबिलिटेट इनको नई जगह देनी, कहाँ वो रहेंगे। और क्योंकि अब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे रहने की जगह छीन ली गई है, रहने की जगह छीन ली गई है, उनका खाना पीना सब कुछ ही वहां पर फॉरेस्ट लैंड पे ही डिपेंडेंट है। तो उनको ये सब चीजें भी इंश्योर करना जब ऐसा कुछ होता है। उसके लिए सो बेसिकली ये था इस स्कीम का मेन फोकस। दूसरी प्रॉब्लम मैं तब से आपको कह रही हूँ कि फॉरेस्ट से उनको निकाल देते हैं। मेन इशू है हर ट्राइबल कम्युनिटी का, अगर आप कहीं भी पढ़ो, मेन इशू है उनकी लैंड से, ठीक है। इसके लिए लॉ में बहुत सारे एक्ट्स भी आए हैं, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी एक्ट्स के लिए। कीपिंग इट वेरी बेसिक, लैंड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि लैंड इज उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड उनका मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल। उनको रहने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए लैंड से वो लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं तो उनका इनकम लैंड से आता है, लैंड पे रहते हैं।
उनका खाना वहां लोकली ग्रो होता है, वो वहां उनका खाना उस पर डिपेंडेंट है। फिर वो उधर से लैंड पे जो ग्रो हो रही है हर्ब्स वगैरह, पत्ते ये सब ग्रो हो रहे हैं, उससे वो अपनी मेडिसिन भी बनाते हैं। तो लैंड इसलिए उनके लिए इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आजकल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स अब जैसे फॉरेस्ट में जा रहे हैं एंड फॉरेस्ट कवर पूरा क्लियर हो रहा है, क्योंकि लोगों को वहां पर अपनी मे बी कंपनी सेटअप करनी है या कुछ ऐसा करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे ऐसी कम्युनिटीज सफर करती हैं। सो इसके लिए काफी स्कीम्स भी निकली थी और काफी एक्ट्स भी हैं इंडियन लॉ के अंडर। जैसे एक पीसा एक्ट है जो कि एक पंचायत का एक एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज का एक्ट है। फिर एक फॉरेस्ट एक्ट अलग से भी है। इसके अंदर बेसिकली सारी प्रोविजंस दी गई हैं कि ऐसा कुछ हो तो उनको कैसे मतलब ट्राइबल्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है। और दूसरा इनमें ये लिखा गया है कि जैसे कि अब लोग आ जाते हैं कि ये कवर हमें चाहिए, यहाँ पर हमें ये लैंड चाहिए, इन लॉज के अंदर ये बोला गया है कि ये सब अलाउड नहीं है। सो बेसिकली इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर द ट्राइबल्स। अट्रॉसिटीज ऑन एसटीज, अट्रॉसिटीज मतलब बेसिकली ऑब्वियसली उनके पास काफी चीजों का एक्सेस नहीं है, उसके अलावा भी उनके ऊपर अच्छा बिहेवियर, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती। आपने काफी बार देखा होगा, बोला जाता है कास्टिज्म वगैरह की बेसिस पे उनपे मतलब उनकी रेस, उनके लैंग्वेज वगैरह के बेसिस पे उनके साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं लोग। सो ये सब भी ना हो, ये भी था एक प्लान का मेन फोकस टू इंश्योर दैट ऑल दीज अट्रॉसिटीज डू नॉट हैपन। फिर एक मेन फोकस था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल वुमेन। ट्राइबल वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल सोसाइटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइबल सोसाइटीज का। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ट्राइबल वुमेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है उसमें। सब बेसिकली जो ट्राइबल आर्ट, और मैंने आपको जैसे बताया उनका आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स है, ये सब चीजें ट्राइबल वुमेन ही करती हैं, उनको वो ही ये सब चीजें बनाती हैं। तो और फिर उसके बाद बहुत सारी जो ट्राइबल वुमेन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में भी। सो बिकॉज वो इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी के लिए, it automatically becomes very important to have something जो उनकी प्रोटेक्शन भी इंश्योर करे। तो उसके लिए भी काफी स्कीम्स निकली थी, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स, काफी आंगनवाड़ी सेंटर्स भी बनाने के लिए एक स्कीम निकली थी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स बनेंगे और उनको मैनेज कौन करेगा? उनको कोई और मैनेज नहीं करेगा, उनको लोकल ट्राइबल वुमेन ही मैनेज करेंगी। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्पेशली फॉर एसटी वुमेन एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेटअप करने के लिए बोला गया था। और बोला गया था कि ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल सोसाइटीज एंड ट्राइबल वुमेन के लिए ही अवेलेबल हो। उसके बाद looking at increasing number of atrocities against tribal, उसके बाद रिसर्च, इंफॉर्मेशन, मास एजुकेशन, ट्राइबल फेस्टिवल्स एंड अदर्स। तो इसका मेन फोकस था। अब हमने बोल दिया कि ट्राइबल सोसाइटीज में ये सब प्रॉब्लम है, ये हमने ऊपर ऊपर से बोल दिया, बट इस चीज में रिसर्च करने की भी जरूरत होती है। रिसर्च से आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। आप सॉल्यूशंस तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स को साइट ना करो। इसके लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव था रिसर्च। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन गेन करना, मास एजुकेशन, जैसे मैंने एजुकेशन का आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जैसे हर ट्राइब का अपना फेस्टिवल होता है, अब आप एग्जांपल ले लो, हर रिलीजन का अपना फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो वैसे ही हर ट्राइबल कम्युनिटी का अपना अलग फेस्टिवल होता है। तो मेन फोकस है कि उनका कल्चर को प्रमोट करना है, अवेयरनेस बिल्ड करनी है और मॉनिटर करना है उनका वेलफेयर। तो इसके लिए कंटिन्यूअल फोकस वाज नीडेड एंड द ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने के लिए बोला गया था जहां भी पॉसिबल हो सकता है। एंड इट ऑल्सो एम्स एट केटरिंग टू द नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर द पॉलिसी मेकर। जैसे मैंने बोला रिसर्च करनी है। अब ट्राइबल कम्युनिटीज पे कल को जैसे जैसे थिंक इंडिया में से जाके किसी मेंबर को रिसर्च करनी है इस चीज पे,
तो ये भी फैसिलिटीज हो कि वो मेंबर प्रॉपरली वहां पर जाके रिसर्च कर सके, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दी जाए, सो दैट ये सब चीजें इजी हो सके. ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ट्राइबल एरिया सफर फ्रॉम ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन. ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन मैंने आपको बता दिया, बेसिकली लैंड. ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन एक तो उनकी जहां वो रहते हैं, अब सपोज हम लोग नॉर्मली रहते हैं सिटीज वगैरह में, अब जैसे काफी ट्राइब्स हैं, जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं, जैसे खासी ट्राइब वगैरह, गारो खासी ट्राइब्स, ये सब वो सब नॉर्थ ईस्ट में हिल्स में रहते हैं ऊपर. अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का मेन सिटी, कैपिटल सिटी है शिलोंग. तो ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे गारो खासी ट्राइब्स की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है अपर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, अपर हिल्स में, और वो जगह इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन सिटीज. ठीक है, सो ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन इस चीज को बोला जाता है. एंड ऑब्वियसली अगर ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन है वो इफेक्ट करती है आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी को. ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी को, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट आर अवेलेबल टू सच पीपल. सो एंड ये प्रॉब्लम भी होती है कि सोशल फैसिलिटीज फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इतनी ज्योग्राफिकली एक्सक्लूडेड एरिया में जाके दे आर नॉट रेडी टू गो एंड वर्क देयर. सो ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए इस प्लान के अंदर मेजर्स लिए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम की इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकें, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए. उसके बाद इसके अलावा एक ये सब तो मेन जो एरियाज थे ट्राइबल कम्युनिटीज को लेते हुए 12 5-year प्लान में जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, दीज वर द मेन एरियाज. इसके अलावा देयर वाज अनदर थिंग कॉल्ड द ट्राइबल सब प्लान. सो द ट्राइबल सब प्लान का अगेन एक ट्राइबल सब प्लान भी बना था अलग से. उसका मेन ऑब्जेक्टिव वाज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज, मीनिंग जहां ये ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उस एरिया को प्रॉपर्ली डेवलप करना है. एंड उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, और उसका वहां पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. सो बेसिकली इस प्लान से 2 ऑब्जेक्टिव्स वर एम्ड टू अचीव. एक था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेड्यूल ट्राइब्स की, और दूसरी उनको प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से. एंड after these both the objectives are achieved, the ultimate aim of this tribal subplan strategy is to narrow the development gap of the tribals with the rest of the country, which means कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन को है इतने अच्छे से उनको डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज दो, उनके लिए इतने अच्छे से काम करो कि जो एक गैप है जिसके वजह से वो अभी भी पीछे हैं इंडिया की बाकी पॉपुलेशन से, वो गैप एक कवर हो सके, और वो भी उनके पास भी सारी अपॉर्चुनिटीज हो और सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ की हो, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की हो, which makes them which puts them at line with the rest of the population of India. So ये मेन चीजें थी इस प्लान की. So एंड में आई विल से दैट ये प्लान ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. इस प्लान में बेसिकली वो एरियाज ढूंढे गए थे पहले जहां जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लैंड की प्रॉब्लम है, मेडिकल फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है. पहले वो सब एरियाज पॉइंट आउट किए गए थे कि इधर इधर प्रॉब्लम है. उसके बाद इस प्लान के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढी गई थी और इनिशिएटिव्स बताए गए थे. ये कह सकते हैं कि जो 12th 5-year प्लान था उसका मेन फोकस था for the overall social and economic development of the tribal communities and to bridge their development with the rest of the country. But as you know, सिर्फ एक प्लान होना या फिर आपने बता दिया लिस्ट करना कि हम ये काम करेंगे is not sufficient. हमें ये इंश्योर करना है कि काम हो रहा है, और ये सब इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जो बाकी की पॉपुलेशन है, कॉमन मैन लाइक आप और मैं, हमें पता हो कि हमारी
कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। हमें ये बताना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आप बताओगे, अवेयरनेस रेज करोगे, उसके बाद बताना है कि उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव ले रही है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि सब इकट्ठे एकजुट होके सब दे डू समथिंग सो दैट जो ये सब उनकी प्रॉब्लम्स है वो इजीली ओवरकम हो सके। एंड इसी के लिए ऐसे जैसे प्रोजेक्ट एकलव्य हो गए, ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स भी शुरू किए गए हैं टू रेज अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक। एंड इसके अलावा इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है खुद उनको भी बताया जाए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, उनको नहीं पता है। अब सपोज अब आप में से हम जैसे लोगों में से हमें लॉ का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि हाँ ठीक है, आप किसी का मर्डर करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बट आपको अभी भी जिसने लॉ नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता है कि उसके एग्जैक्टली क्या क्या राइट्स हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को भी ऐसे ही अपने एक्चुअली राइट्स नहीं पता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि उनको उनके राइट्स बताए जाए। राइट्स बताने के बाद इट इज इम्पोर्टेंट कि उनको बताया जाए कि अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, आपकी राइट्स ऐसे वायलेट हो रहे हैं, तो आप कैसे उनको हाउ कैन यू इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड, एंड कैसे आप उसके लिए you can fight for it. So to end this session, I will say that everyone has a significant role to play for the development of the tribal communities, which involves the government importantly, but also it involves common people like you and me. So yes. Any questions? नो मैम। बच्चों आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप स्पीकर से, मैम से। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बच्चों, इससे पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है। आई थिंक ये आदिवासी लोगों के बारे में, इनके रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट्स हैं तो हाँ उसमें हम पढ़ चुके हैं, और मैम ने बहुत सारा इलेबोरेट कर दिया है। उसके आगे भी कितने प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस एनीवन? नोबडी? यस लवीना? ओके देन। बच्चों और भी मैं पूछ रही हूँ किसी से, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। ओके देन, सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार अपना कैमरा ऑन करना बच्चों फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। सबरीना मैम प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। ईच एंड एवरीवन। आप ले लो फोटो। ये क्या किया आपने? आप क्या कर रहे हो? एक बार और ले लो। आप करो, ऑन करो, नहीं मैं बोल रही हूँ। Thank you so much participants. Thank you so much Sabrina ma'am for a very enlightening and knowledgeable session. I think we are almost at the end of this session. So I invite Dr. Nidhi for vote of thanks. Thank you, Anjali ma'am. Yes, good morning, everybody. On behalf of Department of EVS, IB PG College Panipat, and on
On my behalf too, I would like to place on record my deep sense of gratitude to Miss Sabrina for her precious talk. I hope all present here learnt a lot from her words and ideas. The talk was all very fascinating, full of excitement, motivation, and guidance. It opened a new vista of understanding about Janjati areas. The things what we learnt in the program will prove to be highly fruitful. It really extended the boundaries of our knowledge about this awareness initiative. It will help my colleagues as well as students to be up to the mark in the latest activities in the field. The interest taken by Ms. Sabrina could hardly be overestimated and overpraised. Her involvement in the talk will always remind us of what is excellent and worthwhile and gives a sense and meaning to life. Her fascinating talk will live in our memories for years to come. Thanks are equally due to worthy principal Dr. Ajay Kumar Garg, who inspired Ms. Anjali Gupta and her team to conduct this program to the best of her ability and capability. Thanks are also due to the participants, without whose interest and cooperation we could not even dream of the signal success of the talk. We at IBPG College Panipat are all very grateful to all concerned, our well-wishers, faculty members, and all others who have stood by us throughout the talk for their wholehearted cooperation. Finally, my thanks and feelings of appreciation are due to all those who have directly or indirectly contributed in making this talk a success. It has been an excellent experience, and in the words of Professor Bashir Badr, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी. किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो गई. With this word, thank you one and all present here for sparing your valuable time and joining us today. Thank you so much. Okay, ma'am, before we conclude the session, मैं आपको थोड़ा सा ट्राइबल राइट्स फोरम के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन एक बार और देना चाहूंगी. द ओनली रीजन बीइंग मैंने अपनी स्लाइड शेयर की है. तो हमारा मेन मोटिव टू ऑर्गेनाइज दिस सेशन वाज आल्सो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज, एंड उसके लिए ही द ट्राइबल राइट्स फोरम थिंक इंडिया इज आल्सो वर्किंग फॉर दैट इनिशिएटिव ओनली. And आपको हमारे बारे में और like if the students want to know more about us, they can visit our various social handles that you can see on the slide, that is on Instagram, Twitter and Facebook. And also we have various internship opportunities also which are also available for the students. And at the end, I'll also want to thank the faculty of the college and the students for being a part of this session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Sabrina ma'am, to give information about travel trips. Thank you. ओके बच्चों, आपके पास फीडबैक लिंक आएगा अभी, आप वो भर के आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा. तो प्लीज सभी जो पार्टिसिपेंट्स है फीडबैक लिंक जरूर भरना बच्चों, ठीक है? आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा. इसके साथ ही आज का ये सेशन खत्म होता है, तो अभी आप लीव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन सबरीना मैम. थैंक यू मैम. Thank you, everyone.